Patmos Prayer House. आप सभी को पद्मोस प्रेयर हाउस की ओर से हम स्वागत करते हैं। Anytime you come to Tamil Nadu, Coimbatore State, you are most welcome to come to Coimbatore Patmos Prayer House and even our house. कभी भी किसी भी समय पद्मोस प्रेयर हाउस में आप आ सकते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। We have the discipleship. We used to have discipleship camp for 3 days in January during Pongal holidays. This year we had only meeting because of the COVID-19. Sometime like that, you can come and attend the meetings also. जनवरी के महीने में जो मकर जो रहता है, मकर संक्रांति में 3 दिन का मीटिंग पिछले समय रखे थे जब कोविड-19 था, और उन दिनों में मीटिंग रखते हैं, आप आ सकते हैं। So you can come some at that time. सो आप उस समय में आप आ सकते हैं। Kirtan was there for a few months for training, and again Kirtan and Elizabeth will come to Coimbatore for a few months of training and stay at Patmos Prayer House. तो वहाँ भाई कीर्तन कुछ समय के लिए और वो जो ट्रेनिंग में गया था, अभी फिर से कुछ समय के लिए दोनों जो कि जाने वाले हैं। So gone are the days we thought thousands of kilometers we can't go, but we have a lot of facilities now. It is a possibility. So the Lord will help us to continue to have fellowship with you and pray for you. You brother inform us through WhatsApp. We have WhatsApp. You can give all the prayer requests and whatever happening here, we will pray for you. आप ये ना सोचें कि 1000 किलोमीटर है, बहुत दूर है, लेकिन ये जो है आजकल संभव है, सुविधा है, हम जा सकते हैं। और प्रार्थना भी आजकल हम प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे को हम बतला सकते हैं। We are also encouraged to see our dear brother from Ahmedabad, and a lot of our brothers came from different places. तो हम धन्यवादी हैं, भाई अहमदाबाद से, मणिनगर से आए, और हम सभी जो है कि अलग जगह से आते हैं। First time we met Brother Ezekiel from Chandigarh. We have been praying for quite a long time now, for several years, but we have not met him. We don't know how he was, how he is, but we came, we saw him, and he had a wonderful musician, gifted musician. He sings, and then the way he plays that, what is that? That instrument? तबला, डबली with it's wonderful. तो भाई के लिए प्रार्थना करते रहे थे, पहली बार मिले हैं, और उनकी जो प्रभु ने उन्हें जो वरदान दिया है वो बहुत ही अद्भुत रीति है, हमें उत्साहित करते हैं और डफली बजा करके। Shall we turn to God's word to Psalm 36? आइए प्रभु के वचन की ओर हम जाएं। भजन संहिता 36 अध्याय verses 7 to 9, 7, 8, 9. 7, 8 और 9 पद। Shall we read alternatively? I'll ask brother to read 7. You please read verse 8, and again we will read 9th verse. बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ता हूँ, दूसरा आप पढ़े, तीसरा मैं, इस तरह से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। जितने भोजन से तृप्त होंगे सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। बस। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, once again we thank you and praise you for your presence in our midst. प्रभु, फिर से हम एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। We thank you, Lord, the wonderful way you have saved brother Joseph and Jacob. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत रीति तरीके से भाई जोसेफ, भाई जेकब को आपने उद्धार दिया है। We thank you, O God. It was you, God Himself, spoke to them
and saved them. केवल ये आप हैं जो प्रभु आप उनसे बातें करते हैं, हमसे और उद्धार करते हैं। We thank you, Lord, for the ministries like Vishwavani. They heard the gospel through Vishwavani, and then they were touched and ultimately saved. प्रभु हम धन्यवादी हैं कि विश्ववाणी के द्वारा वो वचन सुन करके उद्धार पाए गए। Lord, as we meditate your word, bless this time and speak to every one of us here. प्रभु इस समय हम आपके पवित्र वचनों पर ध्यान करते हैं, हमसे आप बातें करें, प्रार्थना करते हैं। We pray in Jesus' matchless name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Psalm 22. भजन 22 अध्याय, Psalm 22 भजन 22 अध्याय and verse 22 and 22. पद 22 का 22। We heard the testimony of Brother Joseph and Jacob, J and J. Here is 22 and 22. तो 22 में ही अब जे और जे के भाइयों का वचन, भाई जेकब और भाई जोसेफ का हमने एक शब्द। Someone please read. Very sure. You please read Oriya में। कोई उड़िया में कृपया पढ़ें। ମୁଁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। This verse says, I will declare. That means I will tell. I will tell your name to my brethren. सो यहाँ पर प्रचार करूँगा, घोषणा करूँगा, कहूँगा अपने भाइयों के बीच में, वह कह रहा है। In the midst of assembly, I will praise you. ये जो है कि इस पवित्र सभा के बीच में मैं प्रशंसा करूँगा, कहता है। The Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम, Acts of the Apostles and chapter 4 verse 20. प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 20 वचन। कोई पढ़िए। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। The apostles also say, how can we but speak the things which you have seen and we have heard. सो यहाँ प्रेरित कहते हैं क्योंकि ये हो नहीं, हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। And John says in 1 John chapter 1, यूहन्ना की पहली पत्री और पहला अध्याय में, 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 1, और उसका पहला पद, he says, वो कह रहा that है, which was from the beginning, which we have heard. सो कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, We have seen with और our eyes, जिसे अपनी आंखों से देखा, which we have looked upon, और जिसे हमने ध्यान से देखा, our hands have handled, और हमने उसे अपने हाथों से छुआ। concerning the word of life. और ये पवित्र बाइबल का वचन को ध्यान करने से, And verse 2 he says, now what we have seen, we bear witness. और ये 2 पद कहता है कि हम उसकी गवाही देते हैं And declare to you और उसका सुसमाचार अनंत जीवन का देते हैं, that eternal life which was in the Father and was manifested to us. और जो पिता परमेश्वर अनंत जीवन हमारे लिए प्रकटकरण किया है। What John is saying here, और ये यूहन्ना जो सुना है, we have seen, उसने देखा है, we have heard, उसने सुना है, we have looked upon, और उसने ध्यान से देखा we है, have handled, और उसने अपने हाथों से छुआ है, and bear witness for that. और उसकी गवाही दे रहा है। Now we tell to you, अब आप ये कहें, what is that? ये क्या The है? eternal which was with the Father और यहाँ जो और अनंत कालिक पिता के साथ manifested to था us, means shown to us. और हम पर प्रकट हुआ है। Again verse 3 says, we have seen and heard and declared to you. और फिर से 3 पद में जो कुछ हमने देखा और सुना Oh, है, what has happened? वो क्या हो गया है। John says here, और यूहन्ना यहाँ कहता है, we have fellowship
हम उसके संगति में हैं। We have fellowship with the Father and with the Son Jesus Christ. हम जो है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में रहें, साथ This is हैं। what has happened to brother Joseph and brother Jacob. और यही बात जो है भाई जोसेफ और भाई जेकब के साथ है। Joseph also from Vishwavani, Anand Kumar, something you tell, I can't understand. Is that true? Both of you were saved by the Vishwavani. Is it true? Correct. हाँ, ये सच है। Yes. दोनों विश्ववाणी से भाई। Well, someone from somewhere हाँ, speaks and then it comes to the radio and brother दैट ब्रदर आल्सो जनित Atukut, गुड़िया who? विश्ववाणी नहीं। Oh, I see. Wonderful. And Atukuti Jacob was not in Kumbhakonam. It was about 40 kilometers from Kumbhakonam. It's a place called Hinamangalam. There's a railway station. There's a tea shop run by a Muslim. This is what he has told. So He goes there to take the tea around 6 o'clock in the evening. हाँ, तो इस तरह से भाई ने जो जगह को बताया और वहाँ पर जो सुबह के समय चाय पीते हैं And he was touched. और उसने स्वाद को चखा है। What has happened? और क्या हुआ है, There is electric light here, और यहाँ हम जो है कि जो इलेक्ट्रिक देखते हैं लाइट को, a fan here, पंखा को देख रहे हैं, connected to the electricity. और जब उसको प्लग में और उसको लगाते हैं, कनेक्ट Oh, करते हैं, the light begin to burn. और ये बल्ब जो है कि लाइट जल देता है, जलता Burn है, begin to rotate. पंखा घूमता रहता है। What happened to the bulb and the fan when they receive energy through electricity? क्या हुआ है कि ये जो है और बल्ब है, ये पंखा है, उसने जो है इलेक्ट्रिसिटी से उसका पावर लिया है, They heard the voice of God through radio. और इसी रीति से उन्होंने जो है कि उस पवित्र वचन को रेडियो के माध्यम से लिया है Believe that word. और उस वचन पर विश्वास किया। What has happened? और क्या हो गया है, The moment they believed, और जो वो समय में उन्होंने विश्वास किया they received the life of God. और उसने जो कि जीवन को उन्होंने की पा लिया है। Oh, amazing thing. यह ऐसे अद्भुत बात है, That's what John says here. और यही बात को यूहन्ना कहता है। The life of God the Father और ये जो वचन पर पिता परमेश्वर का जीवन है manifested to us हमारे बीच में प्रगटीकरण हुआ है through His Son, the Lord Jesus Christ, और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, who is life. और जो जीवन है, The moment you believe, और जो हम परिस्थिति विश्वास करते the हैं, moment you put the plug of the light or the fan into electricity, next moment it begins to burn. The light begins to burn and the fan begins to rotate. जिस समय में उस प्लग को हम जैसे डालकर बटन को ऑन चालू करते हैं, वो काम करना आरंभ कर देता है। So the moment you believe, और जिस समय परिस्थिति में आप उसको You receive विश्वास करते eternal हैं, life. आप अनंत जीवन को आप ले लेते हैं। but lot of things happen in between. और बहुत सी बातें, बहुत सारी बातें ऐसे हुआ हमारे मध्य में, When you believe, और हम विश्वास करते the हैं, Holy Spirit of God convict you of your sins और पवित्र आत्मा हमारे पापों को कायल करता है, because of the work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के काम के कारण हम देखते हैं। And when you repent and confess your sins, और हम अपने पश्चाताप करके मन को फिराते हैं, the तो blood of the Lord Jesus Christ cleanses our unclean, filthy heart. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जो है कि और गंदे मैले पापों को धो डालता है, And the Holy Spirit of God comes into our life, into our heart. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है, That's how we receive eternal life. और इस तरह से हम कैसे प्रभु का जीवन को ग्रहण करते And हैं। when the Lord Jesus Christ come into our heart, when all this is happen, we receive new life. और जब इसी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम नया जीवन को हम ग्रहण A करते new हैं, nature. ये नया स्वभाव को हम पा लेते हैं, The nature of God, और ये परमेश्वर का स्वभाव है, which will takes away our selfish, sinful nature and give us a new nature, the nature of God Himself. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो
पाप का जो स्वभाव है, स्वार्थ स्वभाव है, उसको ले लेता है और स्वयं का स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह And हमें the देता है। life of God revives और us from the death to life. और परमेश्वर का वचन हमें परिवर्तित करके और नया और मृत्यु से हमें जीवन की ओर लाता है। Ephesians 2:1 says, "You were dead in trespass and sin." Our soul is dead. ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला वचन में देखते हैं कि तुम तो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। When the Lord Jesus Christ, His Spirit comes into our heart, जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आया है, we are revived. हमें हमारा जीवन में परिवर्तित आया We receive new life. और हमने नया जीवन को ग्रहण किया है। Oh, what a wonderful thing it is. और क्यों कितना ये अद्भुत बात है। And the psalmist here in Psalm 36, और ये भजनकार भजन संहिता 36 अध्याय में कहता है verse 7 says, और 7 पद में कहता है, "How precious is your loving kindness, O God." हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। Oh, God's love Oh. and kindness is so precious. ओ परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का करुणा बहुत अनमोल है। Because of God's love to us, because of God's kindness to every one of us, you and me, His Son came and He went to the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के कारण परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनमोल करुणा हमारे पास अब आया है। So this verse says, "Therefore the children of men put their trust on the shadow of your wings." सो यहाँ हम पवित्र वचन में देखते हैं कि मनुष्य और तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वचन कहता है। What we are expected to do? और हमें क्या करना है? God expects to put our trust in Him. और प्रभु चाहता है कि हम उस पर अपना भार रखें, उस पर विश्वास करें, Believe in Him. उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें, Believe in His word. पर में उसके पवित्र वचन पर विश्वास Believe करें, whatever He has done. और हम इस बात पर विश्वास करें कि जो उसने किया उस पर विश्वास करें And totally believe Him. और पूरी रीति से विश्वास करें। Brother Bakshi used to say, भाई बख्शिंग इस तरह कहते हैं in the book of Jonah, और योना की किताब में, you know the story of Jonah. आप सब किसने जो है कि योना की कहानी सुना है? What happened? क्या हो गया है? When Jonah disobeyed God's word, went to Tarshish on a ship, you know the story. What happened? They threw him into the sea. सो हम सभी जानते हैं कि योना जब अनाज्ञाकारी होकर के और तर्शीश की ओर चला जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसको जो है कि समुद्र में डाल दिया। And God commanded one big fish, और परमेश्वर ने एक बहुत महामच्छ को आज्ञा दिया, and he was thrown into the sea. और जब वो उसने उस समुद्र में फेंक दिया है, There was a big fish waiting to open with the open mouth. हाँ, सो ये बहुत बड़ा महामच्छ उसको निगलने के लिए मुंह पसारे हुए बाट जो होता है, Jonah landed at the mouth of the fish. और उस मछली के पेट में और वो मुंह में चला गया है। The fish Jonah. swallowed him, but did not digest him. He was saved in the fish. सो उसको उसने निगल करके उसको हजम नहीं किया, पर उसको उस सावर में से संभाल के रक्षा करके रखा This is है। what God's word says. और इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, To say, और भाई बख्शी यह कहते हैं, even if God's word says that Jonah swallowed that big fish, I will believe. और इस तरह से भाई बख्शी कहते थे कि योना उसका पेट में अगर मछली और अंदर से रहे तो भी निगल लिया है योना, तो ये बात को मैं विश्वास करता। It's impossible for Jonah with the small mouth to swallow that a big fish. हाँ, ये एक अद्भुत बात है कि एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा मछली को मुंह में निगल ले पूरा। So what does it mean? और इसका क्या मतलब है? The meaning is he was willing to believe whatever God's word says so. इसका मतलब यह है कि जो पवित्र वचन बाइबल हमसे कहता है उस वचन पर हम विश्वास करें। He was willing to believe, obey whatever God has commanded in His word. और जो कुछ भी परमेश्वर की आज्ञा है और प्रतिज्ञा है उस पर हम विश्वास करते हैं, That तो was the blessing. और वो हमारे लिए आशीष होता है। And when we
look into the several saints of God, men and women of God, because they believed God's word like that, obeyed, God used them mightily. सो हम बहुत सारे और स्त्री पुरुषों को देखते हैं कि इस तरह से जब उन्होंने प्रभु का वचन पर विश्वास करके और चलते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम करते हैं। There was a young woman born in Kerala in a place called Karaikal more than 100 years back. 100 साल पहले केरला में एक बहन थी, Karaikal, Kerala, Tiruvalla district. हाँ, तिरुवल्ला डिस्ट्रिक्ट में A child was born, and she was the first child. She had 16 brothers and sisters. 16. She is the first child. Her mother, the parents had 16 children. When the 16th child was born, the mother died. तो उस माँ का 16 बच्चे थे, वो पहली बच्ची थी और वो बच्चे 16 बच्चे के बाद मर गए उसकी माँ। So her father was alone, and this is the first child. Her name was Ponnamma. वो उनका पिताजी भी नहीं थे और अब उनके पिताजी अकेले थे और वो जो है कि और अकेली थी। So in that big family, वो बड़ी फैमिली था she has to take care of another 15 children. और वो जो छोटी जो लड़की है बड़ी है घर का, वो सारे 15 बच्चों का वो जिम्मा लेती है। In the very young age, he believed in the name of the Lord Jesus and was born again. और छोटे समय में ही उसने जो है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके विश्वास किया है, नया जन्म पाई है। So after he was born again, she asked her father, "Father, please buy a Bible." That is the Kerala Malayalam Bible. सो उस जगह में उनका नया जन्म पाने के बाद अपने पिता से और मलयालम बाइबल खरीदने के लिए पिता से कही है। Father said, he was very poor, 16 children, you imagine. Said, I have no money to buy a Bible. पिता ने कहा इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पास पैसे नहीं बाइबल खरीदने के लिए। So she went and worked in the field as a laborer and received some money and she bought a Bible. और वो जब कि खेत में गई है और मेहनत परिश्रम करके एक बाइबल खरीदने के लिए। Every day she began to read the Bible. God began to speak to her. और उसने खरीद लिया और प्रतिदिन पवित्र वचन बाइबल को पढ़ने लगी और उससे परमेश्वर बातें करने लगे। She was not much educated, maybe 8th standard or 10th standard. वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 9वां या 10वां में। There was a man of God called Sadhu Kochakunju और at that time. उस व्यक्ति का नाम था साधु कच्चा कुंजू। He was a man of God. वो परमेश्वर का जन था। He gave her good training in the word of God. वह जो भक्त थे उनको बाइबल का अच्छा शिक्षा दिए। And she began to serve the Lord. और जब वो प्रभु की सेवा करने लगी है, At that time there was cholera and several people are dying in Kerala and the border Tamil Nadu also. और उस तो केरला तमिलनाडु के बॉर्डर में बहुत सारे लोग मरने लगे। And Ponnamma along with other sisters went and helped lot of people, gave medicine. They buried lot of dead people. एक पन्नम्मा एक जो कि दवा देने वाली एक बहन थी और बहुत लोग मरने लगे, उसको लिए वो दवा देती थी, बचाती थी। One day they saw a child which was suckling milk from the mother. The mother was already dead. तो वहाँ एक बच्चे जो है कि रो रहे थे दूध पीने के लिए और दूध पी रहे थे, उसका माँ मर चुकी थी। Ponnamma took the child and then she started rearing that child. और उस रोते हुए बच्चे को पूनम्मा ने जो है कि उठा ली है। See her love and affection and serve and her obedience to serve God. Sadhu Kochakunju. Her original name was Pennamma. And Kochakunju changed her name to Ponnamma. That means gold. You know, Pon means gold. पूनम्मा मतलब गोल है
सो उसने प्रेम और उस पर अनुग्रह की दूसरी दया दिखाई, उसको ले लिया। उस साधु का जो दूसरा नाम है पोन्नम्मा मतलब गोल, Ponnamma became a sannyasini. पूर्णम्मा जो क्या Sannyasi. सन्यासिनी, हाँ सन्यासिनी थी, सन्यासिनी। हाँ सन्यासिनी थी। God began to use her mightily. और परमेश्वर उसे बड़े सामर्थ्य से इस्तेमाल किए हैं। Around the year 1940, when Bhakt Singh was ministering in North India, it was Ponnamma Sannyasi who called him to Madras and arranged the meetings. सो जब भाई भक्त सिंह 1960 में उन सारे जगहों में सेवा करते थे, तो जो पूनम्मा जो सन्यासिनी बहन थी उनका जो है अरेंज करती थी सभा में। There was a big revival in Madras. और इस तरह से बाइबल पूरा और फैल गया मद्रास में। Thousands repented from their sins. और 1000 लोग वहाँ से जो है उद्धार पाके पश्चाताप किए हैं। This is God's word. God speaks through this word. और ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और परमेश्वर इस वचन से बात करते हैं। So you buy your own Bible and read God's word to hear God speaking to you. सो आप इस पवित्र वचन को खरीद करके आप इस वचन को पढ़े और प्रभु आपसे बातें करेंगे। So they went to Bible Society, bought every Bible. All the stock was over. Yes. बाइबल सोसाइटी वाला वहाँ पर का जो बाइबल था सारा बाइबल और वहाँ पर से खाली हो गया, खत्म हो गया था। All the stock, Bible stock was over. They had no more Bible. They have to start print new Bibles. इतना दिनों से रखा हुआ बाइबल, पूरा बाइबल जो है बाइबल सोसाइटी वाला खत्म कर दिया और नया प्रिंट करने लगे। That is how this revival came. और इसी रीति से वहाँ जो है कि और जागृति आई है। As we saw in book of Exodus, God tells Moses, I have come down. सो हम इस बात को देखते हैं कि निर्गमन उसका 3 अध्याय में कैसे परमेश्वर उतर आए मूसा के पास। Exodus chapter 3 and verse 8 he says, God says, I have come down to deliver these Israelites from the hand of the Egyptians. सो यहाँ और 3 अध्याय का 8 वचन में कहता है कि इसलिए परमेश्वर कहता अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। God came down. परमेश्वर उतर आया है। And God began to speak to people. और परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना आरंभ कर दिया। It was in the year 1969. I was in a prayer group studying my veterinary science. In the prayer group, small prayer group, 20 people, 20 students attend the prayer group. Many came to know the Lord because God came down to that small prayer group. तो इस रीति से मैं 1969 में एक छोटा सा प्रेयर ग्रुप में वहाँ पर आया। And in the book of Exodus, we have read in the morning also, God tells Moses that I will send you, verse 10, I will send you to Pharaoh that you may bring my people from the Pharaoh's slavery. और इस तरह से सोमवार के समय में ये वचन मेरे पास आया, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। God came down. परमेश्वर उतर आया है। God began to use mightily his servant Bhakt Singh. और परमेश्वर भाई भक्त सिंह को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए हैं। Oh, there was deliverance from sin. और यहाँ देखते प्रियो उन्हें अद्भुत रीति से पाप से छुड़ाए। And many received the life of God. और बहुत सारे और उस जीवन को पाए हैं। The Psalm 36. और भजन संहिता 36 अध्याय में And verse 7 we have read, therefore the children of men put the trust on the shadow of your wings. यहाँ कहता है पर मनुष्य, भजन संहिता 36 का 7 में, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। And verse 8, the result is they are abundantly satisfied with the fullness of your house. और यहाँ 8 पद में हम पढ़ते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। And you give them drink from the rivers of your pleasures. और वहाँ कहता है कि तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। Oh, what happens when we believe in the name of the Lord Jesus and continue to obey His word?
क्या होता है जब हम प्रभु का वचन को सुन करके उसको हम लगातार मानते रहते हैं। And this is the result, abundant satisfaction. और यहाँ पर हम देखते हैं कि और भरपूरी के साथ जो है कि तृप्ति And God पाते हैं। gives them drink from the rivers of His pleasures. और परमेश्वर अपने सुख की नदी से उनको पिलाता है। Psalm 16, और भजन संहिता 16 अध्याय, Psalm 16, भजन संहिता 16 अध्याय verse 11. और उसका 11 पद This में, verse says, "You will show me the path of life. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, In your presence there is fullness of joy, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, and in your right hand are pleasures forevermore." तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, He is not chota, वो छोटा परमेश्वर नहीं है, bada bada. बड़ा। So when He gives, और वो देता है He gives in abundance. और वो बहुतायत से देता है, He gives in fullness, वो भरपूरी के साथ देता है and He gives all the pleasures forevermore. और सारी और आवश्यकताओं को भरपूरी से देता है। But the interesting thing is लेकिन और मुख्य बात यह है, the path to life. Matthew chapter 4, verse 14. और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, Matthew 7 and 14. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 14 पद Please में read that verse. कोई भी कृपया पढ़े। This verse says, "Because narrow is the gate and difficult is the way that leads to life." क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। This side of our assembly we have a small gate, narrow gate. और हमारे ये कलिसिया में एक छोटा रास्ता है इस साइड, Maybe that side there's a big gate. और उस साइड बड़ा रास्ता हो सकता है। This is it is sometimes very hefty people, very difficult to enter this gate. और हो सकता है कि बड़ा मोटा ताजा व्यक्ति उस में प्रवेश ना कर पाए। And then narrow is the gate and difficult is the way. और वो लिखा है कि कठिन है, Which सकेत है वो फाटक और Which कठिन leads to है। life. और जो जीवन हम बिताते हैं, What about the way to death? और ये जो मृत्यु का जो मार्ग ये क्या It is है, broad, वो चौड़ा मार्ग है, very easy. वो बहुत आसानी जीवन बिताता And है। this verse says, और ये पद कहता है, that is why there are few who find life. और यहाँ इसीलिए कहता है कि थोड़े हैं जो उससे जीवन को पाते हैं। Do you understand why we have a small prayer house? Our gathering is so small. आप सोचते होंगे क्या है हमारा ये छोटा सा प्रार्थना भवन है, थोड़े से हम लोग हैं। In other places, there are many. और दूसरी जगह बहुत सा और लोग हैं। What happened? क्या हो गया है? Because they do not want to the narrow gate. और क्योंकि हम उस सकेत मार्ग में हम नहीं चलते हैं। They want to have a easy way, not a difficult way. हाँ, क्योंकि हम उस सकेत मार्ग में चलते हैं और कठिन है वो मार्ग। So the way to life, सो ये जीवन का जो मार्ग है, the path of life, और जीवन का जो ये मार्ग है it has fullness of joy. और ये आनंद की भरपूरी का है। There are pleasures forevermore. और वहाँ पर सुख सर्वदा है, Not only in this world, ना केवल इस संसार there are में, much more over there. और इस संसार से स्वर्ग में और इससे भी बढ़ करके है। We think about the real saints of God. और हम इस संसार में हम सोचते हैं The man of God, servant of God, what is the परमानंद, Paramanand, हाँ। and Brother Bakshi, Brother K. Philip, there are a lot of people. They are already gone सो into eternity and enjoying the pleasures forevermore. सो बहुत सारे दास भाई परमानंद और भाई फिलिप और भाई बख्शी, कितने सारे प्रभु के लोग पहुंच चुके हैं और वहां पर भरपूरी को तृप्ति को प्राप्त कर रहे हैं। So the psalmist says in Psalm 36, और इस तरह से भजन 34 कहता है, you give them drink from the rivers of your pleasures. Psalm 36 and verse 8. और भजन 36 अध्याय का उसका 8 पद में कहता है कि तू
अपने सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा। Verse 9, for with you is the fountain of life. और 9 पद में जीवन का रास्ता तेरे ही पास है। See, these rivers originate in big fountain over there in the mountain. You know that? आप देखते होंगे जो बड़ी जो पहाड़ है उससे नदी का सोता निकलता है। There are big fountains in the mountain. और बड़ा बड़ा पहाड़ से बड़ा सोता निकलता है। They flow down और जो धीरे से वो नीचे उतरता है and become a mighty river. और एक बहुत बड़ा महानदी बन जाता है। The salvation, Isaiah says, salvation is like a well. He speaks about wells of salvation. और यशायाह कहता है कि जीवन का उद्धार का सोता। Isaiah chapter 12. यशायाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय में Isaiah says, और यशायाह कहता है you draw water from the wells of salvation. Verse 3. और 3 पद में तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। There is a well. If there is a well with water, और ये कुआं उद्धार का सोता क्या है? you draw water. और वो वहाँ से हम पानी निकालते हैं। Go on, draw water. और हम जाकर जब पानी What निकालते हैं, happened? Water is coming. और क्या होता है? पानी अंदर से निकलता है। Because there is a fountain in the well. क्योंकि वहाँ जो कुआं का में एक सोता है। This is the true in our spiritual life also. और ये हमारे जीवन में इसी रीति से सच्चाई है। When we testify, जब हम उसके स्वाद को चखते when we हैं tell others और जब हम दूसरे को कहते of हैं the salvation we have received, हम जो उद्धार पाए उसको बतलाते हैं। what are we doing? और हम क्या करते हैं? We are sharing the fountain of life that is in our heart to others. और हम हमारे जीवन का सोता में से दूसरों को हम देते हैं। As you draw water, more and more water from the well, it goes on give more water. हाँ, तो हम जितना वहाँ से पानी निकालते हैं सोते से और ज़्यादा निकलता जाता है। If you don't draw water, what happens? और अगर उससे पानी अपने ही निकालेंगे तो क्या होगा? Is stagnant, remains there. और वहाँ पर जमा हो जाएगा वो। So what do you understand from that? सो आप उसमें क्या वहाँ पर से समझते The हैं? life and salvation we received from the Lord Jesus Christ, God expected to share with others. सो हम इससे ये समझते हैं जो हमें प्रभु जीवन का सोता दिया, उद्धार दिया है, और प्रभु ये चाहता है कि हम दूसरे को हम बांटें। So where Ruth can stay, share this life, God's life, she can share with other young people, classmates and students. सो जहाँ रुद रहती है उस स्थान में अपने मित्रों को, अपने क्लासमेट को और उनको जो शेयर कर सकती, बांट We can सकती share है। with this life with our relatives, friends and others who are working with us. जो हमारे पड़ोसियों को, हमारे और जो साथ में रहते हैं, काम करते हैं, उनको जो है कि हमारे जीवन को हम सब साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। Oh, God expects every one of us, not only one or two people, everyone. तो केवल 1 और 2 मनुष्य से ये परमेश्वर जो है कि चाहत नहीं रखता What है, will हर एक happen? से ये रखता है। What will happen when we do that? और क्या होता है जब ये हम करते हैं? We will not be stagnant. हम वहाँ पर जमे ना रहें, We will be overflowing. हम वहाँ से हम जो कि बहना चाहिए। Psalm 23, King David says, "My cup runneth over." और भजन संहिता 23 अध्याय में कहता है दाऊद, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। How does it run over? और कैसे वो उमड़ रहा है? Verse 5. 5 पद में, My cup runs over. मेरा कटोरा उमड़ रहा है, You anoint my head with oil. तूने मेरे सिर पर तेल मला है। Speaks about setting apart to serve God. और इस रीति से उसने अपने आप को अलग परमेश्वर की सेवा के To लिए किया God's है। will, to be found in God's plan. और परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार Oh, what is the पाया है। result? और वह उसका जो क्या प्रत्युत्तर आया है। When you pour to others, और हम किसी को डालते हैं तो you have more and more coming. और वो नीचे और आते जाता है। When you don't give out, और ये हम नहीं डाल देंगे तो, whatever you have, it is there, but it's stagnant. और जो कुछ भी यहाँ है रखा हुआ पर ऐसे ही जम पड़ा हुआ है। You understand the secret? और ये आप समझ रहे हैं, ये जो
भेद When we share with others और इसलिए हम इसको दूसरे the को life बांटें। of the Lord Jesus. और ये जीवन का जो यीशु मसीह का जीवन है, Whatever we have with others who are in need, और जो कुछ हमारे पास है और जरूरत के लोगों को देना है, showing love to them. और उसको हम अपना प्रेम को दिखाना है। What we have to understand is God will fill it again and again. Like a fountain, it will come. हाँ, सो परमेश्वर उनको और भी वहाँ भरते चला जाएगा। You don't give, और हम ना दे तो it is there stagnant. और ही जमा रहेगा, Cup cannot run over. और ये कटोरा और बहेगा नहीं, उमड़ेगा Oh, नहीं। this is the secret of Christian life. और ये जो है और मसीही जीवन का रहस्य है। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, See the rivers of pleasure, rivers of water. और उसके पास आनंद की और भरपूरी है, और जल का सोता है। Sometimes we think, oh, we are only small people. There are others, people on the right side and left. They are blessed. They are far better than me. जो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग थोड़े लोग हैं, उधर उस साइड में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। There is a story of a family Ye- in a small town. A husband and wife had a small grocery shop. सो एक छोटा सा जो शहर है उसमें एक व्यक्ति का दुकान था, राशन दुकान। The town started growing very fast. और वो शहर जो है कि जल्दी से बढ़ने लगा है। So on the right side, a big discount store has come, very big store. जब वो शहर बढ़ने लगा, वो से जो राशन के दुकान के ठीक आगे में एक बहुत बड़ा मॉल वहाँ खड़ा हो गया। All the groceries are sold in discount sale, much cheap. और उस सामने वाले के दुकान में जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उसको कम रेट में बेचते रहता है। On the left side, a big shopping mall came. Everything became, they were selling very cheap. और दूसरे साइड में बड़ा और मॉल है, वहाँ पर बहुत सा बात जो है कि सामान वस्तुएं बेचते रहता है। But in between this small piece of land, no one purchased, though they had the shop. सो दोनों और इन दुकानों के और इस मॉल के बीच में छोटा सा जगह है और उसको कोई नहीं खरीद रहे हैं। What to do now? और वो अब क्या करेगा? And the man had a wonderful idea. और उस मनुष्य को एक अद्भुत विचार आया है। He wrote in his shop, और उस दुकान में उसने लिखा है, main entrance is here. और मनुष्य इस जगह में प्रवेश करे तो That side is a big discount store. और उस साइड में और बहुत डिस्काउंट है, आधा हिस्सा है। This side is a very big shopping mall. और वहाँ दूसरा साइड में बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। In between this is a small shop. और इसके दोनों के बीच में एक छोटा सा But it is written दुकान main है। entrance is here. और जो मनुष्य इसमें प्रवेश करता है, You understand the point? क्या समझ में आया? Sometimes we might think like that. और इस रीति से हम लोग सोचते हैं, But अभी- God will bless us लेकिन परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। in the place where we are और हम जिस स्थान में हैं with whatever God has given us. और जो कुछ भी हमको सौंपा है, God can bless, still use us. और परमेश्वर हमको आशीष करके और उसको इस्तेमाल करेगा, There is fullness of joy. और वहाँ आनंद की भरपूरी होगी। Ephesians chapter 5, और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय verse में 18. 18 पद में, I want to close with this. It's very important for every believer. मैं खत्म करूंगा क्योंकि ये सब हर एक विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Please read. Someone in Moria. Ephesians 5 and 18. कोई कृपया 5 का 18 पढ़िए इफिसी उड़िया में। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷରସରେ ମତ୍ତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। This verse says, be filled with the Spirit. यहाँ पर वचन कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Verse 17 says, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. और 17 पद में कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की
इच्छा क्या है? It is God's will that we should be, every believer who is indwelt by the Holy Spirit of God, to be filled with the Holy Spirit of God. सो ये परमेश्वर का ये इच्छा है हरेक विश्वासियों के जीवन में कि वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। The Holy Spirit of God is a person, is not an object or some object like water. सो ये पवित्र आत्मा जो है कि एक व्यक्तित्व है, ना कि कोई वस्तु है ये पानी के समान। He is a person. वो एक व्यक्तित्व है। God the Father, और पवित्र आत्मा God the Son, और परमेश्वर God the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा प्रभु। In the Word of God, water is a type of God's Word and also the Holy Spirit. सो इस तरीके से पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा और ये वचन भी जो है कि पवित्र आत्मा है। When the Word of God says, be filled with the Holy Spirit of God, what does it mean? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कुछ उसको पढ़ेगा उसमें उसकी भरपूरी होगी। The meaning is here even in the verse itself. It says, do not be drunk with wine. और इस तरह से यहाँ पर इसका मतलब बतलाता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो। Some people drink wine. कोई और दारू और पीता है। हाँ? How much? Yes, Wine. drink wine. हाँ, Yes. दाखरस या And how much they drink? और Do कितने they सारे drink पीते a हैं? pot full of water, और कितने सारे पीते हैं? pot full of wine? पूरे कटोरे भर के पीते हैं। They take only small quantity of wine. हाँ, वो अपना दुकान से वो जो है कि What happens? थोड़ा सा पीते हैं। क्या When होता they है? drink wine, और जब वो उस को पीते हैं the wine begin to control their life. और उसके जीवन में जो ये जो और दारू है वो उसको पूरा हावी कर लेता है, If they कंट्रोल कर drink लेता more है। wine, और वो ज्यादा पीने जब चालू करता है they lose their control. You know, we have seen that. और ज्यादा पीता है तो अपना जीवन को उससे अपना They are संभाल नहीं fully सकता है। under the control of wine. और ये जो है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, इस तरह से कहता है। Be filled with the Spirit actually means to be under the control of the Holy Spirit of God. और वो कहता है कि और इसलिए तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, उसके अधीनता में, कंट्रोल में रहो। Some Pentecostal churches will show like as you fill the tumbler with water, they show you are half filled, you are fully filled, you are overflowing. It's a very bad example. सो वो जो पेंटिकोस्टल वाले उस एक उदाहरण देते हैं कि आधा भरा है और थोड़ा भरा है, पूरा भरना है। ये जो उदाहरण है पीने का, Holy Spirit ये of बहुत है, God, गलत है। Holy. यहाँ पवित्र आत्मा जो है कि पवित्र है। So the first sign when the Holy Spirit of God comes into a believer's life, पहला चिन्ह कि हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे विश्वासियों के अंदर में आता है, a life of holiness begins. और जो है पवित्रता का जीवन आरंभ होता है। It is not speaking in tongues and jumping and crying. Morning also I heard some jumping and shouting here, very near. It is not. It is not jumping and shouting and doing all those things and speaking in tongues. तो यहाँ पर हम सुबह के समय में देख रहे थे, सामने में रहते हैं भाई, वहाँ पर उछल रहे थे, जोर जोर से गा रहे थे। ये ऐसा पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं आती। It is a living a holy life. और ये जो है कि पूरे जीवन के अंदर में आता है। Holy life is a powerful life. और ये जो पवित्र जो जीवन है ये सामर्थी जीवन है। As we submit, और जब हम अपने आप को as we अधीनता में रखते हैं, consecrate our life to God, submit to the control of the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of God begins to take control of our life. जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु के चरणों में रख देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और परिपूर्ण होने लगता है और हमारे जीवन को अपने कंट्रोल में लेता है। This is what has happened to Brother Bhakt Singh or Sadhu Sundar Singh and the many co-workers who worked with him, and Ponnamma Sannyasini
Amy Carmichael of New Zealand, or Basilius Link of Darmstadt, Germany. I was telling, if you read those books, this amazing story, we will shed tears. The Lord was doing miracles in the life of Bakshi in a miraculous way when he depended on God's word. You read the life story of these saints. God began to use them mightily, did many wonders in their life. सो इस रीति से परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। भाई भक्त सिंह, भाई सुंदर सिंह और कितने और जो उधर पूनम्मा और न्यूजीलैंड के एमी कार्मेल, जर्मनी में से और कितने सारे संतों के जीवन में से प्रभु ने इसी पवित्र आत्मा की भरपूरी से काम किया है और हमारे जीवन से भी इस रीति से वो हमारे जीवन में भी काम करता है। And God's plan is that every one of us should be filled with His life. सो परमेश्वर का जो योजना है वो हर सभी भाइयों हमारे जीवन में और उसके जीवन की भरपूरी को लेकर के है। And then Psalm 36, they were abundantly satisfied with the fullness of your house. और भजन संहिता 36 में हम इस तरह से देखते हैं उसके घर में भरपूरी है। Ezekiel 47. एजकेल की किताब 37। Here is an important thing. In Ezekiel vision. और वो दर्शन क्या देखता है एजकेल? Ezekiel 47 verse 1. एजकेल उसका 47 अध्याय पहला In his vision he saw water flowing from under the threshold of the temple. और वहाँ पर उसने क्या देखा है? फिर वह मुझे भवन के द्वार पर ले गया और देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। It started like a small fountain. और वो आरंभ जो है कि छोटा सा सोता के रूप में Later on the water comes to the ankle. और जब उसने बहना आरंभ किया है तो घुटने तक आया है unto his hip. और वहाँ से ऊपर। And then verse 5. और 5 पद में It was a river that I could not cross. और एक बहुत बड़ा नदी बन गया जिसे मैं पार न कर सका कहता है। So what do we find here? जो हम यहाँ पर किस रीति से देखते हैं? This life, very life, the temple and the threshold speaks about the church of God when the saints assemble together. हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये जो भवन है ये कोई नहीं है, चर्च है और यहाँ प्रभु का वचन जो देवड़ी से उसका सोता से बह रहा है, ये चर्च कलीसिया है। God's very life flows from the assembling together of His redeemed children, the saint of God. सो प्रभु के संतों की सभा से यह अपना सोता को प्रभु जो है कि अद्भुत रीति से बहाता है। It is a mighty river. ये एक बहुत बड़ा नदी बन जाता है। No birds like swallow or sparrow can they drink the river water? और ये जो है जो सुपाबेनी और गोरैया के समान नहीं कि वो जो कैसे वो पीते हैं। It is a mighty river. और ये जो बड़ा नदी है which God can give to every one of us. और ये समूह को देना चाहता है प्रभु। May the Lord help us. प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सोच रहे थे प्रेयर करने के लिए थोड़ा थोड़ा, पर प्रभु का एक भाई एक बहन प्रार्थना करेंगे। वाच नाइट प्रार्थना नहीं करके एक भाई एक बहन प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें अद्भुत गवाही के द्वारा से बातें किया और हमारे जीवन में प्रोत्साहित किया कि हम सुसमाचार करें, सुसमाचार प्राप्त करें और ये जीवन का सोता, ये भेद को खोला प्रभु कि जीवन का सोता प्रभु के घर में भरपूरी है, प्रभु की संगति है। सो इस तरह से हमारा जीवन लगातार प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के घर में रहे और सुसमाचार करें। विशेष करके हमें जो दिया है, सोता बहाया है। पिछले दिनों में हम कुछ मिल करके प्रेयर कर रहे थे, सुसमाचार सुना सके इसके लिए प्रभु जो है एक गाड़ी का भी प्रबंध करे कलीसिया में। उसके लिए अलग से एक जो है रास्ता से वो गाड़ी का प्रबंध करें, इसके लिए प्रार्थना करें कि हम यहाँ झारसुगुड़ा
डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत सा भी डिस्ट्रिक्ट प्रभु आप हमें देगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर चलो, इतना दूर से भाई लोग आया, हमें कितना उत्साहित किए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। सोनपुर अभी हम लोग उधर कभी कभी जा सकते हैं। कितने सारे प्रभु के दास लोग इधर एयरपोर्ट आते हैं, रिसीव करना है, ले जाना है, सुसमाचार सुनाना है। नए लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं आंध्रा तरफ से, भैया आप लोग के इधर हम सुसमाचार करना चाहते हैं। तो दूर से लोग भाषा बोलने नहीं जानते, सुसमाचार करने के लिए उनके अंदर में है, एक विचार बोल देना है। तो प्रार्थना करिए, प्रार्थना घर बने हमारा, जो भवन और चूड़ी हो, सारे रुकावट दूर हो। रोहित मसीह भाई भी अपने और वहाँ पर ललितपुर में जो है प्रार्थना भवन बनने के लिए और प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। उनका और पेट में पथरी है, उसका इलाज किया जाए, प्रभु उसे करें, उसके लिए प्रार्थना करिए। और इस तरह से और भी पिछले दिनों में जो अद्भुत रीति से सहायता किया, एक भाई गुड़िया भाई, एक बहन में से करिए, आखिरी में हम करेंगे। प्रेमी विश्वास योग्य सच्चा और जीवित परमेश्वर, बातें करने वाला परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाने वाला परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आज वर्तमान में अभी हमारा परमेश्वर,